હવે સીએમ પણ લાઈવ મળી રહ્યા છે, સીધા જે છે ત્યાં તેમનું સંબોધન સાંભળીએ। स्थित मेरे साथी मंत्री श्री मोड़ूभाई बेरा, राज्य के मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार जोशी, भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव श्री मनोज जोशी, अपर मुख्य सचिव श्री एम के दास, महसूल विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमती जयंती रवि, भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव श्री कृणाल सत्यार्थी, मेरे सामने हमारे सांसद श्री भरत सिंह डाभी, श्री जसवंत सिंह परमार, श्री हरिभाई पटेल, मेरे साथी विधायक श्री रमनलाल वोरा, श्री बाबूभाई पटेल, जगदीश मकवाणा जी, जे.एस. पटेल, लविंग जी सोलंकी, कमलेश पटेल, राजेंद्र सिंह राठवा, मेघजी भाई चावड़ा, रमण भाई सोलंकी, वीडी झाला, उपस्थित सभी अधिकारीगण, आमंत्रित सभी महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। हम तो गुजराती અને ગુજરાતના બધા ઘણા બધા ઓફિસરો છે, પણ આપણે બધા હોસ્ટ છીએ એટલે હિન્દીમાં બોલવું જરૂરી છે। પણ લોકોની મને અહીંયા આવતા હોતા એમ કહેતા કે ભાઈ મહેસૂલ વિભાગ એ સેવામાં હંમેશા લાગેલું હોય, કોઈકની સેવા આવે એટલે લાગે નંબર કોનો, તો કે મહેસૂલ વિભાગનો। કોઈ બી જિલ્લામાં કઈ બી જાય તો આમ નીચે ઉતરતું આવે। હા, કલેક્ટર ને કહે ને કલેક્ટર મામલતદાર ને પેલા પ્રાંત ને કહે ને પ્રાંત મામલતદાર ને મામલતદાર થી સીધા નીચે તલાટી સુધીની સેવા પહોંચી જાય કે આવું કંઈક કરવાનું છે। એટલે ખૂબ અને મહેસૂલ વિભાગને જે સેવા આપવામાં આવી હોય એ સેવામાં ક્યાંય તકલીફ નથી પડી, એટલે આ ચાલુ રહી છે। અને આ વખતે પહેલી વખત જે તમે સેવા કરીને અહીંયા બધા ભેગા થયા છો એ તમારા પોતાના માટે, પોતાના ડિપાર્ટમેન્ટ માટે આ વખતે સેવા કરી છે। બાકી તો બીજા બધા ડિપાર્ટમેન્ટની સેવાઓ આવતી હોય, વીવીઆઈપી આવતા હોય, ક્યાંક સેવામાં એનો લાભ આપતા હોય, પણ ખૂબ સારું મહેસૂલ ખાતું, આપણે કહીએ ને કે મહેસૂલ ખાતું એક એવું ખાતું છે કે જેમાં જો માણસ ફસાયો તો સરકારોય બદલાઈ જાય અને ઓફિસરોય બદલાઈ જાય। પણ હવે એની અંદરથી લોકો બહાર નીકળતા પોતાને એક આશાનું કિરણ તમારા બધા થકી જ મળી રહ્યું છે કે હવે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ નથી થતો અને ઝડપથી નિર્ણય આવીને એને એનું નિરાકરણ મળી જાય છે। હજુ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જે સુધારા કરવા છે એના માટે આજે આપણે બધા ભેગા થયા છીએ અને ખૂબ સારા વાતાવરણમાં ભેગા થયા છીએ કે ભાઈ જે પણ ફેસિલિટી જોઈએ એ આપણને અત્યારે મળી રહી છે। અત્યારે કલેક્ટર ઓફિસો જે નવી બને છે આપણને ઓફિસ જેવી, એટલે પહેલું વાતાવરણ એવું બનાવે કે ભાઈ ના આપણે જે કામ કરીએ છીએ અથવા સામેવાળા જે સેવા લેવા આવી રહ્યા છે એ બંનેને સંતોષ થાય એવી ઓફિસો પણ હવે બની રહી છે। એટલે સેવા ખૂબ સારી રીતે સુધરતી રહી છે। અને હજુ એની અંદર જે બી નાના મોટા, હું તો કાયમ કહું છું કે આમાં કેવું હોય છે કે શબ્દોની મારામારી હોય છે। વધારેમાં વધારે જો મગજમારી થતી હોય તો આ શબ્દોની, અને એ શબ્દોની મારામારી વધારેમાં વધારે થતી હોય તો મહેસૂલમાં એક કલેક્ટર ઇઝીલી કરી નાખે કે ભાઈ આ બરોબર છે, આટલું આ સમજણ પડે એવી વાત છે, ના કરી નાખો। બીજા કલેક્ટર કરે જ નહીં, ગમે તે ના, આનો અર્થ જ આવો ના થાય કે અરે ભાઈ
એટલે હવે આપણે બધાએ શબ્દો એવા શોધવા પડે કે બધાને એનો અર્થ એક જ નીકળે. તો અમારા પંકજ જોશીજી કહેતા હતા કે ભાઈ આ મહેસૂલનો સબ્જેક્ટ છે એટલે થોડો બોરિંગ ના થઈ જાય, એટલે થોડા હળવા કરી દીધા. विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से निर्मित महात्मा मंदिर का यह परिसर का नाम पूज्य बापू के नाम से जुड़ा है. पूज्य बापू स्पष्ट रूप से मानते थे कि सच्चा स्वराज वही है जहां शासन की कल्याण योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति गरीब दरिद्र नारायण तक पहुंचे. हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शासन को लोकाभिमुख अभिगम और टेक्नोलॉजी से जोड़कर स्वराज से सुराज्य की नई दिशा दी है. डिजिटल इंडिया, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट पर आज प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से आयोजित यह नेशनल कॉन्फ्रेंस सुशासन के लिए सतत विकास, आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय की आवश्यकता के अनुरूप है. आज लोग को पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश अब बदल रहा है और विकसित भारत बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है. बीते 11 सालों में आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त और संपूर्ण पारदर्शी प्रशासन देश को दिया है और सुशासन की दिशा में लैंड रिफॉर्म्स के साथ साथ अनेक नए मापदंड स्थापित किए हैं. हमारी जमीनें हमारी सभ्यता का आधार भी है और अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है. जमीन ने किसानों की आजीविका, उद्यमियों के निवेश और लोगों के अधिकार का प्रमाण भी है. ऐसी व्यवस्था को प्राथमिक सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है. यह प्रोग्राम पारदर्शिता और सुशासन को नए तरीके से परिभाषित करने के साथ देश भर के गरीब, वंचित और जरूरतमंदों को साथ सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित कर रहा है. मोदी जी अक्सर कहते हैं कि अब हमें एक कदम आगे बढ़ाना है, सिर्फ रिकॉर्ड को डिजिटल नहीं करना बल्कि प्रशासन की सोच को भी डिजिटल बनाना है. गुजरात का तो सौभाग्य है कि श्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप का लाभ हमें पिछले 24 सालों से लगातार मिल रहा है. श्री नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने स्टेट के लैंड रिकॉर्ड का संपूर्ण डिजिटलाइजेशन शुरू कर दिया था. जब देश के अन्य राज्यों के किसान अपने ही रिकॉर्ड्स के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटा रहते थे, तब 2005 में श्री मोदी साहब ने गुजरात में ई धारा योजना से किसानों की जमीन के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइजेशन कर दिया था. नागरिक सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की आदरणीय श्री मोदी साहब की गुड गवर्नेंस की विचारधारा से 2011 में राज्य भर में जन सेवा केंद्र की स्थापना नागरिक केंद्रित शासन का एक उत्तम उदाहरण है. पारदर्शी और विश्वसनीय प्रशासन के लिए आई ऑरा पोर्टल आदरणीय श्री मोदी जी की एक ऐसी पहल है कि इस पोर्टल्स के माध्यम से लैंड रिकॉर्ड संबंधित 35 से अधिक सेवाओं को एंड टू एंड ऑनलाइन कर दिया गया है. इतना ही नहीं, जहां कभी भूमि मापने महीने लगते थे, आज वही काम आई ऑरा से 21 दिन में पूरा होता है. गुजरात में हमने गर्वी 2.0 जैसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से नागरिकों को उनकी घर पर ही सेल डीड, इंडेक्स 2 और लैंड डिटेल डॉक्यूमेंट पहुंचाने का काम किया है. प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के लिए स्वदेशी उत्पादन और स्वदेशी टेक्नोलॉजी के उपयोग पर बल दिया है. प्रधानमंत्री जी के इस विचार को गति देते हुए बाइजेक, इसरो, एनआईसी जैसी भारतीय संस्थाओं द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग
जमीनों के सैटेलाइट मैपिंग और स्वामित्व योजना के लिए किया गया है। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की इन नई पहलों के कारण आज लाखों लोग निर्विवादित रूप से अपनी जमीन के मालिक बन पाए हैं। इतना ही नहीं, जमीन जायदाद को लेकर हो रहे अनेक पारिवारिक विवाद का भी सुखद समाधान मिला है। इन सभी टेक्नोलॉजी के उपयोग से लोगों के समय और श्रम की बचत हुई है और ईज ऑफ लिविंग का विस्तार हो रहा है। इतना ही नहीं, गुजरात ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया है। हमने अपनी प्रोग्रेसिव लैंड पॉलिसीज लागू कर विंड एंड सोलर एनर्जी को ग्रीन एनर्जी के लिए सरकारी जमीन का लीज पर अलॉटमेंट और आसान बना दिया है। गुजरात की ये सभी पहले इस सत्य को उजागर करती है कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस से ही गुजरात आज देश का विकास का रोल मॉडल और ग्रोथ इंजन बना है। इसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो यह हमेशा से ही गुजरात की असली स्ट्रेंथ रही है। 2001 में कच्छ के भयानक भूकंप के आपदा प्रबंधन से श्री नरेंद्र भाई ने पूरे विश्व को यह दिखाया कि सही मायने में डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है और इसे कैसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। श्री मोदी साहब ने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलने की जो प्रेरणा हमें दी है, उसके फलस्वरूप भूकंप के कुछ ही महीनों में कच्छ ने गुजरात के नए इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकास के नए सीमा चिन्ह स्थापित कर दिए थे। गुजरात के एक कोस्टल स्टेट भी है। इस वजह से हमारे यहाँ अक्सर अलग अलग प्रकार की नेचुरल क्लेमिटीज होती रहती है। पिछले कुछ सालों में हमने नेचुरल क्लेमिटीज के सामने जीरो कैजुअलिटी अप्रोच को प्रभावी तरीके से सफल बनाया है। हालांकि पिछले वर्षों में नेचुरल क्लेमिटीज की बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी से अब यह जरूरी हो गया है कि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट को इंटीग्रेटेड अप्रोच से अपनाया जाए। ये दोनों ही विषय पर नागरिक की सुरक्षा, उनकी गरिमा और उसके भविष्य से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम इस मंच से माध्यम से मैं शेयर करना चाहूंगा कि गुजरात ने इस जिम्मेदारी को निभाते हुए नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के तहत 11 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में 76 मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर्स बनाए हैं। आज का यह सम्मेलन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों को मॉडर्न टेक्निक्स, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच के साथ और सक्षम बनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने बेस्ट प्रैक्टिस को एक दूसरे के साथ साझा करें। आइए हम सब साथ मिलकर ऐसी संयुक्त राष्ट्रीय रणनीति तैयार करें जो हर नागरिक के जमीन के अधिकार को सुनिश्चित करे, देश को प्राकृतिक आपदा के सामने डिजास्टर रेजिलेंट और सुरक्षित रखे। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सफलता की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात।